Hello everyone. I am documenting this. This is my room for Vipassana. छोटा सा रूम है, बहुत अच्छा है एक्चुअली. एवरीथिंग इज़ गुड. प्लस बाहर भी हरियाली वरियाली अच्छी है. आई जस्ट एनरोल्ड. बहुत गर्मी लग रही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्विच ऑफ द फैन. आई डिड नॉट फिल्म एनीथिंग अंदर आते समय या फिर जाते समय. आई फिल्म माई एक्सपीरियंस ओनली बिकॉज मैं फ़ोन दे दूँगी ऑब्वियसली. So it's 10 days, almost 11 days of meditation with no phones and everything. Staying alone, not talking. And I've done advanced meditation course. एक किया हुआ है जहाँ पे भी ऐसा मैंने किया था. So it's not my first time. सबका एक्सपीरियंस मिला के I'm going to make a video definitely. But I don't know what inspired me to be here. But I knew one thing is I needed to like become whole. Heal, and I want to enjoy like the most little things of my life. I want to romanticize every single second of my life. इसलिए मैं यहाँ पे हूँ. I really want to learn that. I don't know how I'm gonna get that, but I hope कि मैं यहाँ से निकलूँ. That's one thing I have conquered. Is I am romanticizing every single second of my life. Wish me luck for this. I am gonna make the best use of it. I'm gonna show you outside. बहुत beautiful जगह है. जब तक मैं फ़ोन देख नहीं देती, I'll film some things. चलो. So that's my room. Bahar you can see everything, the greenery है सब. That's washroom. Over there hangers, bed है मस्त. चद्दर भी हुए है. And that's it. So that's my room. F4. And बाकी सारे I think single और double rooms भी है. Ignore. I think I still look cute, so it's okay. Moment I got out of my room, but the walking space is really nice. So अभी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा चल रही हूँ. I'm gonna show you. मेरे को भी नहीं पता कहाँ पे क्या है. I don't know what this is. Female teachers path. Okay. Female Dhamma hall. ध्यान कक्ष. So I think we'll have to be coming here soon. आज के दिन ऐसा कुछ है नहीं हमारे लिए. जस्ट रजिस्ट्रेशन और थोड़ा हम उनको बताएंगे. एवरीथिंग. ओह दिस वेरी प्रिटी. होल्ड अप. सो मैंने ट्राई किया है सब सिनेमैटिक शॉट्स भी लूँ जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ के. प्लस आई टेक माई ओन शॉट्स वहाँ पे जितने टाइम तक मेरे पास फ़ोन था उतने टाइम तक. एंड आई ट्राइड माई बेस्ट. आई होप यू विल एन्जॉय द होल व्लॉग. ये काफ़ी लंबा व्लॉग है बाकी व्लॉग से हमारे. सो हैव सम पेशेंस एंड सिट विद इट विद अटेंशन स्पैन क्योंकि एंड में आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ दिस होल शिविर. सो I don't want you to miss out on that. That's the best thing of the whole vlog. Keep up with me. And I just really walked around क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं था. You know I love walking. I love working out. थोड़ा बहुत हुआ लेकिन हुआ. So that's अलग अलग जगह. D आगे से A, R is F, E and F is here. और जब ये बेल लिखा आपने, I think that bell is gonna ring in the morning 4 o'clock for us to wake up. I wake up at 9 right now. It's okay. I will wake up. Of course, we will wake up. कोई option नहीं है अपने पास. You have to wake up. Day 1 interview with teacher for personal. Okay. Breakfast का टाइम है सुबह के 6:30 बजे. Can you believe it? I wake up at 9 right now. This is the whole reason this was so important for me. ये schedule पूरा mess up हो गया है. But I have to meet the teacher. I have to meet the teacher myself आज. अभी बहुत गर्मी लग रही है. टूर ख़त्म हो गई. I'm going to sit
Actually, I'm gonna walk for a while. I'm not gonna film. I'm gonna submit my phone और फिर मिलती हूँ मैं 10 दिन के बाद जिंदा रहे तो. Of course, I'll be even better. I'll see you in 10 days. For now, bye. Hi berries, I am alive. Clearly, I'm alive. बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ कहना है. मैं चलते बात करूँगी. So in case you are feeling dizzy, accept it. We just got our phones back. और अभी कल सुबह तक बाकी है. But basically this is our last day. और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो ओके है टू गिव नॉट रियली इंटरव्यू बट आर ओके टू से उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरे शिविर का 10 दिनों का. एक्चुअली 12 days इन टोटल. देन आई लव फॉर यू गाइज टू हियर देम आउट. ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँगी, मेरा टाइम लगेगा बिकॉज आई रियली वांट टू से इन डिटेल क्या करवाते वो नहीं, बट my experience and my realizations. So yeah, let me see how can I and where can I start from whom. को बारिश ने क्या हट गया है. Literally a pond at the moment. This is a gate. ये हमारा गेट था. यहाँ से फीमेल सेक्शन चालू होता है. दिस वॉज मेल सेक्शन बाहर का पूरा. मैं आई तब आई शोड यू ऑल ऑफ इट है ना. बट once it started we were not allowed to go outside of this place. Yes, constructed. आज open हुआ है इसीलिए. And this was like male area, males can't come in. Although hall में we all were sitting together, एक line में like male on the other side, female on the side. Finally I have agreed. Okay, हमारे पास we have my neighbor, almost neighbor. Okay, what do you want to share? Anything? What do you think? It was a good experience to be. हमारे जितने बच्चों को कोई सलाह. Shall I say in Hindi or Gujarati? Anything. गुजराती नहीं, खाली हिंदी, इंग्लिश. हाँ, बहुत मज़ा आई विपासना में. It was a good experience और अच्छा लगा. थोड़ा tough है, लेकिन first time I think it will be tough, then it will be fine. But it is really relieving your mind. सब अच्छा था and we became friends also, all of us. So that was a good Without experience. Without talking. Yes, without talking. It was a good experience. It's nice to meet Twija also. Thank you. Hello. Hi. हमारे टीचर के आचार्य के हॉल के बाहर है. हॉल यहाँ पे है, उनका घर यहाँ पे. Someone like not someone, there are people around me अभी जो हमारी एज के हैं. show you quickly. जो भाग रहे हैं because वो रेडी नहीं है उनकी वजह से. ठीक है. डोंट जज एनीवन. ठीक है, यही सीखना है यहाँ पे. इसलिए तुम लोग तो आओ, कमेंट सेक्शन वालों आओ यहाँ पे. आई वांट अगर वो कुछ शेयर करना चाहे. बहुत सारे लोग यहाँ के नहीं हैं. मुझे तो आई थिंक 45 मिनट्स लगे सिर्फ यहाँ पे आने के लिए. देयर आर पीपल फ्रॉम आउटसाइड और मैं तो खुद आई हूँ. कुछ लोग हैं जो खुद नहीं आए हैं. और कैसा एक्सपीरियंस बदलता है हर लोग की तरह. सो आई एम गोना ट्राई टू फिल्म देम, टेक एज मच एज यू वांट एंड लीव द रेस्ट. हेलो, रिपोर्टर से फील आ रहा है लेकिन संभाल लेना. दिस इज लाइक आवर हॉल, धम्म हॉल. आई थिंक मैंने दिखाया था स्टार्ट के ब्लॉग के, बट अभी तो ये झील बन गई है यहाँ पे. इट्स प्रिटियर राइट नाउ. बट आई हैव समवन प्लीज. ऑफ कोर्स फॉर्मल नहीं है कुछ भी. ओके, आई जस्ट वांट लाइक यू टू शेयर बिकॉज आप खुद से नहीं आए हो यहाँ पे. हम तो अपना खुद का पैर ऐसे वाड़ी में मार के आए हैं. But it was still fun. I'm going to talk about my experience later on. How was yours? अरे come. You also come. We have to take yours also later. ये दूसरी बार है ये यहाँ पे. दूसरी बार पैर को बुलाने वाली है. Just let your experience be known, so more people can be maybe inspired. Both of you. It was actually a very great experience. First time it was difficult, but second time it was very great. No, it was very good experience. Okay, बताओ. Okay, second time आऊँगी तो ये पता चलेगा मुझे. तो sorry, तो I am out of this. But okay. But
व्हाट अबाउट यू? एक्सपीरियंस अच्छा था। स्टार्टिंग में जैसे सब लोग यहाँ पर आए ना अपनी मर्जी से आए हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी बिल्कुल भी नहीं। मुझे फोर्सली भेजा गया था कि आपको विपासना तो करना ही है। ठीक है यार, कर लेते हैं। अभी तक जैसे सब लोगों ने सुना है ना, लिबास ने सुना था कि IAS ऑफिसर बनने के लिए, मैंने विपासना पहली बार सुना था। घंटी भी बज गई है अंदर जाने के लिए अब। अरे ये इस घंटी से सबसे ज़्यादा परेशान हुई हूँ मैं, सुबह 4 बजे उठाती सुबह है। 4 बजे उठा देते हैं ये लोग। और ऊपर से एक सिर्फ ये घंटी नहीं है, एक उनके पास अलग सी घंटी होती थी और वो बजती थी। वो बहुत annoying घंटी थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँगी दिस इज रियल, दिस इज रॉ, आई लाइक दिस। ओवरऑल इसमें एक्सपीरियंस बोलूँगी तो अच्छा रहा। स्टार्टिंग का मेरा मन कर रहा था यहाँ से कि मैं भाग जाऊँ, अगर मैं अपनी मर्जी से आई होती तो मैं चली जाती, पर मुझे फोर्सली वहाँ पर मुझे करना था। बट एंड में मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। अब मैं जब घर में बता रही हूँ कि कैसा रहा, मम्मी पूछ रही किया क्या तुमने वहाँ पर, तो सच में मैंने कहा कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत हल्का फील हो रहा है। तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए, आप लोग भी आइए ज़रूर यहाँ पर। अगर नेक्स्ट ईयर से मैं, मम्मी और मेरा भाई हम तीनों साथ आएंगे वाह, ये तो एक्सपीरियंस है। एंड एक्सप्लोर मोर प्लेसेस। खाली यहाँ पर भी नहीं, और बाकी कच्छ वगैरह में, राजस्थान में, बहुत सारे ऑल centers हैं ओवर इसमें। इंडिया में सेंटर्स हैं, उधर उधर हम एक्सप्लोर करेंगे और इस विपश्यना का लाभ उठाएंगे। हम एक बार में बराबर है। सो अभी हमारे डिनर एक स्नैक्स का टाइम है। हर रोज एक ऑलमोस्ट एक ही होता है, बट आई कैन टेक यू इनसाइड आज। लेट्स गो। माई प्लेस, मैं यहाँ बैठती हूँ। खुद साफ करना है, यही करना है। सो इसको लेके जाना पड़ेगा डिनर लेने। सेव ममरा and apple and banana. So let's see what I can take today. ये तो आई मीन हर वक्त अलग अलग होता था। अगर मुझे बहुत भूख लगी है तो फिर मैं सेव ममरा खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। आई एम नॉट रियली नॉट अ फैन ऑफ सेव ममरा, लेकिन अभी कुछ नहीं मिलता ना 5 बजे के बाद, और इतना मेडिटेशन करना होता है, इतना दुख सहन करना होता है अपने बॉडी पे, मेंटली एंड फिजिकली, तो फिर लगती है भूख। तो सेव ममरा भी यार ऐसा क्या पिज़्ज़ा लगता है। बट दैट डे आई वाज फाइन विद इट, सो आई जस्ट हैड एन एप्पल जस्ट फॉर दैट डे। आई एम डन विथ माई डिनर। यस, डिनर में हमेशा फ्रूट मिलता है और सेव ममरा होता है। एंड आई हैव ईसबगुल विथ मी। मेरा पेट बड़ा ख़राब है, तो आ जाए बराबर। You know, I need to talk about the breeze. बारिश मत गिरना, मेरे कपड़े बाहर हैं कल के पहनने के। रिगार्डलेस अभी मैं ये सब लूँगी जाके, और कल सुबह का ब्रेकफास्ट आई कैन फिल्म। अभी वी हैव टू गो फॉर मेडिटेशन, तो आई वोंट बी एबल टू फिल्म। उसके बाद प्रवचन है, डिस्कोर्स। आई डोंट नो फिल्म हो पाएगा कि नहीं, आई विल ट्राई। हाय फ्रेंड, इट्स अ फ्रॉग। हमेशा रहता है मेरे रूम में। बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इट वॉज रेनिंग एंड आई फेल्ट लाइक आई नीडेड टू टेक फ्यू मोर सिनेमैटिक शॉट्स। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जितना हो सके उतना सिनेमैटिक बनाए अपने व्लॉग को, और chaotic वो तो होगा बिकॉज दैट इज मी। But yes, before we went to the meditation class, since हमारा मॉन खुल गया था, we could like talk and walk, and that's just exactly what we were doing before going to the meditation, because वहाँ तो चुपे रहना है रात तक, बाद में थोड़ा बात ही कर ले। I wasn't really allowed to film anything here, लेकिन थोड़ा बहुत जो फिल्म हुआ, but this is how we used to sit for meditation and discourse. आज हमको लेट नाइट वॉक करने का
पूछ लूँगी। That's what I'm here for. Okay, but I just took a cinematic shot for you guys. So let's just find food. Congratulations to me क्योंकि हमें खाना मिल गया। और हम रात तक आई थिंक 2 तक तो हम लोग बात कर रहे थे। 2 घंटा भी नींद आई है कि नहीं आई पता नहीं उस दिन लास्ट डे को, जब हम लाइक ऑल वी वर अराउंड सेम एज और मस्त एकदम बॉन्डिंग हो गई थी सिर्फ आधे दिन में। वी जस्ट talked and thankfully I ate as well, but it was a good night stay in a way. I loved it. Hi, I'm back in my room और बस स्किन केयर किया मैंने, फट गई है स्किन मेरी। That's okay. I washed my hair today after 9 days. गंदे हैं बाल भी, that's okay, that's fine. ये बहुत बेहतर है पहले से, so that's more important. Okay, my experience मैं घर जाके शेयर करूँगी because I think I need some time to gather every single day's realization, because every single day I had a new realization and it like opened my eyes a little bit more. So that was there. मुझे अंदर फिल्म करने नहीं दिया, okay? So I don't think कल सुबह भी जब 4:30 को सुबह मेडिटेशन हॉल में जाएंगे, I don't think I can film. I'm going to give you update about my experience very soon. Hopefully ये vlog अच्छा बन रहा है. I'm trying my best. कितना हो सके. Good morning berries. Oh my god, okay. हमारे आचार्य जी हैं, बाद में बात। बहुत ठंड लगे, ओके, बहुत ठंडी है. So I'm having a shawl. और yeah, I mean the course is over. 4:30 को meditation था, अभी 6:30 हुए. It's time to go and have breakfast. So I'm going to take you. सुबह अलाउड नहीं था obviously to film anything. Yeah, it's over. Damn. Let's go and have breakfast. Everyone, it's kheer and a methi ka gota. Please don't take it the wrong way. In Gujarat, it's called like that only. I'm not a big fan of ये जो मेथी का गोटा होता है. I say this हंसी आती है, but ठीक है. But I loved खीर, बहुत मस्ती. मैं 2-3 ऐसे एकदम बाउल्स लेके खीर बराबर पी. You know my sweet tooth यार. So I did that and usually you go and wash that. Wash तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन ये पोंछ रही थी वो दिखा दिया. प्लीज़ डोंट सी द इस्त्री ऑफ माई शर्ट, ओके? मैंने इन किया था इसीलिए. वापस आ गई हूँ अपनी जगह पे. आई एम बैक होम एंड आई एम फिल्मिंग दिस आफ्टर एटलीस्ट अ वीक ऑफ कमिंग बैक. सो मैं हर रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ बिकॉज दे हैव मेंशन कि अगर सुबह शाम 1 घंटा आप करो तो ज़्यादा अच्छा है. बट अनफॉर्चुनेटली नवरात्रि आ गई है एंड ऑब्वियसली जो दूसरा होता है वीडियोज़ होता है हर रोज़ का, देन देयर इज़ माई डांस क्लास गोइंग ऑन और फिर नवरात्रि भी है. सो डूइंग ऑल ऑफ इट टुगेदर नहीं हो पा रहा है. बट आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू से कि इवन देन जो भी मैंने सीखा 11-12 दिन, इट हैज़ स्टेड विथ मी एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी सो मच. मतलब जो इंसान यहाँ से पहले गया था एंड द वन हु केम बैक, मेंटली शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ जेन्युइनली वेरी डिफरेंट. सो मेरे हिसाब से यू शुड डेफिनेटली गो एंड टेक दिस चैलेंज. मैं चैलेंज की तरह गई थी, मैं इसकी वजह से नहीं गई थी यार चलो मुझे कुछ ये सीखना है वो सीखना है. आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि सीखने मिला मुझे. स्पिरिचुअली आई ग्रू अ लॉट, इमोशनली आई गॉट स्ट्रॉन्गर एंड मेंटली आई गॉट सो मच बेटर. जो इंसान यहाँ से गई थी और वापस आई उसका माइंडसेट एकदम अलग था. ऑल्दो आई न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं सीखी वहाँ पे, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन माई इनर सेल्फ व्हाट्सएवर जो बोलते हैं उसको. लेकिन वहाँ पे मुझे गुरु के साथ आई गॉट द चांस टू नो एंड हाउ टू टेक माई सेल्फ देयर. मुझे पता था मुझे मेरे सबकॉन्शियस पैटर्न्स
को चेंज करना, आई डोंट वांट टू हैव अ विक्टिम माइंडसेट एवर इन माय लाइफ, ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा रिसेंटली मुझे मेरे साथ जो भी हुआ उससे मुझे पता चला आई हैव नॉट रियली एक्सेप्टेड माई सेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल, और आई डोंट रियली लव माई सेल्फ इनफ, या फिर मैं अपने आप से ना काइंडनेस और कंपैशनेट से बात नहीं करती। आई कैन डू दैट टू अदर पीपल, मतलब किसी को इतना भी लगे तो आई वाज लाइक यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बट फॉर मी आई एम वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। यू शुड डेफिनेटली हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट, जिस तरीके से आप अपने लिमिट्स को पुश कर सको, लेकिन टॉर्चर नहीं करना है अपने आप को, करना ही है। एक्सट्रीम लाइक ऑन ईदर एंड्स इज नॉट गुड, एंड आई एडमिट आई वॉज right, even for like losing weight and all, I just went extremely in. It's good to go all in, लेकिन torture नहीं करना है अपने आप को या फिर किसी और को. So I learned a lot. I knew I had to like work on a lot of things, and I was working. लेकिन ये अच्छा रास्ता मिल गया मुझे गुरु के साथ किस तरह से करना है, and very easily it happened. So like in the span of 12 days, ठीक है, हर रोज़ मुझे एक रियलाइजेशन होता था, हर रोज़ समथिंग। मेरी आंखें ऐसी थी पहले दिन जैसे खुलती गई। आई डोंट नो इफ इट मेक्स सेंस, ज़्यादा भी लग सकता है तुम लोगों को, बट आई डोंट केयर बिकॉज दैट एक्जैक्टली हाउ आई फेल्ट एवरी सिंगल डे. लाइक वन डे आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ, वन डे आई एम एक्सेप्टिंग द रियलिटी आई एम लिविंग इन, अदर डे आई एम एक्सेप्टिंग कि यार जो भी है मेरे अराउंड बहुत सही है, आई एम कंटेंट विथ एवरीथिंग इन माई लाइफ. डिज़ायर्स रखो बट अटैचमेंट्स ना रखो ना, एंड दैट्स लाइक एन insanely great thing. I'm not gonna say कि वहाँ पे क्या होता है, because वो विद्या आपको वहाँ पे जाके सीखनी चाहिए. That's why I think कि वो ज़्यादा अच्छी रहेगी. मुझे तो जितना मैंने सीखा वो बता पाऊँगी. I'm not an expert obviously, so don't try when I say it. Go and experience it yourself. Go and challenge yourself by yourself, because you don't have phones there. You don't talk to anyone. आप अपने आप से ना बात कर सकते हो. मैं तो करती थी because I needed to sometimes talk. There was this one time मुझे घर जाना था, दोपहर को हर रोज़ होता था मेरे साथ ऐसा, because our schedule was like 4:30 to 6:30 in the morning, फिर 8 to 11, then 1 to 5:30, and then 6 to 9. So all of these are meditation times. और बीच में जो टाइम है वो ब्रेक और खाने का होता है. खाना मस्त था. Let me tell you one thing that made me stay there also was food. खाना बहुत ही मस्त था, so 1+ point. But I feel हर रोज़ I had this realization, और every single afternoon, क्योंकि 1 से 5:30 कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, you get bored. मम्मी याद आती थी मेरे को. मुझे घर जाना था. I used to cry while meditating, like ना. फिर मुझे पता चला एंड डे पर कि सभी ऐसा करते थे, because it was actually painful on our bodies. मेंटली इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, और टाइम ही ऐसा था कि बहुत टाइम तक बैठे रहना था, तो थोड़ा बोर हो जाते हो तो थोड़ा रिलेट करने लगते हो किसी और चीज़ के साथ. एंड देन वो जस्ट ऑल्सो आई थिंक एट नाइट आई एडमिट आई हैव क्राइड अ लॉट, बट इट वॉज लाइक अ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ ट्रैप्ड इमोशंस जो मैं नहीं, क्योंकि हम बहुत सप्रेस करते हैं, इमोशन सप्रेस करते हैं, बातें सप्रेस करते हैं, अलग अलग टाइप के इमोशन सप्रेस करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडीज़. So I think it was just all coming out. It wasn't coming out negatively, like मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है. I was just crying because it felt good after that. Like अभी हल्का लग रहा है, kind of like that. But yeah, afternoon, because there were a lot of thoughts that were just annoying me, and I was like अरे ये जा नहीं रहे, thoughts जा नहीं रहे. But basic meaning of the whole thing is like तुम strong mindset रखो, और कोई भी सिचुएशन है अच्छी बुरी, you have a neutral balanced mindset. You don't react to it for yourself or for other people. तुम खुद रिएक्ट करोगे तो किसी और पे प्रोजेक्ट होगा, तो उनको भी तकलीफ होगी तकलीफ, या अच्छा होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट होगा. आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज इट्स प्रीटी डीप, बट यू हैव टू हैव लाइक. बट या ये तो अलग ही एक्सपीरियंस था. मैं बहुत ही खुश हूँ मैं अपने आप को चैलेंज दिया, बिकॉज आई वॉज इन अ फेज दिस टाइम वेयर आई वॉज ट्राइंग टू चैलेंज माई सेल्फ ऑन टू थिंग्स, जिससे मुझे अपने आप पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सो आई फिल द फॉर्म. मैंने सोचा ही नहीं कुछ क्या होने वाला है, वहाँ जाके देख लूँगी. इट वॉज डिफ़िकल्ट, आई एडमिट इट, बट आई मेड इट. एंड हाउ टू बी ऑनेस्ट, वापस आके आई बिन यूजिंग ऑल द टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स इन माई रियल लाइफ. जब भी कोई ट्रिगर आए,
या फिर मुझे एंग्जाइटी जैसा हो, इन केस टचवुड नहीं होती है, ऐसा थॉट्स आए, आई एम नॉट बॉदर्ड बाय देम एनी मोर. होते थॉट्स अभी भी उतने ही है, बट आई एम जस्ट नॉट बॉदर्ड. लाइक देयर इज नो रिएक्शन टुवर्ड्स इट विद इन माई सेल्फ. मैंने आज तक कभी किसी और पे प्रोजेक्ट नहीं किया है, एटलीस्ट आफ्टर आई हैव हील्ड ऑन दैट परस्पेक्टिव. लेकिन हाँ, अपने आप पे प्रोजेक्ट डेफिनेटली किया था, तो वो भी ठीक नहीं है ना. So I've learned so much. I already knew a lot of things, but I learned them. I don't know ये difference समझ आता है कि नहीं. मुझे पता था. एक बात होती है तुम जानते हो इसके बारे में, फिर वो एक्सपीरियंस होता है तुम्हारी खुद की बॉडी पे. your whole mindset changes and then you're like, right, now I've actually got the hang of it. तो ये इस तरह का मेरे लिए transition था. I knew it कि for some reason it's going to be an extremely positive transformation for me. And it turned out to be so. I'm very glad and grateful for the whole experience. जो भी था, दोपहर कोरोना आता था, हर रोज़ नहीं आया, लास्ट के 3-4 डेज में कोरोना नहीं आया, बिकॉज आई लर्नड टू मैनेज माई इमोशंस एंड टेल माई सेल्फ यार इट्स ओके, everything is temporary, right? That's what they always say. Every single thing is temporary. That's the whole process that we were learning as well, to feel the pain in our body, on our own bodies, and not react to the pain, जिससे हमारा माइंडसेट और हम स्ट्रॉन्ग बने. और बाहर कुछ हो, इन केस कभी भी कुछ दुख सुख वॉट एवर कम्स, यू कैन हैंडल इट वेल एंड यू नो दैट कि ये जाने वाला है. अगर सुख चला गया तो दुख भी चला ही जाएगा. वाई रिएक्ट एंड नो मेक योर सेल्फ सैड. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, होगा, but you can at least try to be better and better so you don't hurt yourself and then later on someone else. I just love the whole thing and मुझे लगता है कि at least you guys need to challenge yourself with this. I'll tell my berries this is just go, know yourself, know your innermost self for you, किसी और के लिए नहीं. Do it for you. Out and about, leaving finally. Bye berries, I'm ending my vlog here. Outside finally, ये दिखा है मेरे को 11-12 दिन के बाद. But I'll be sharing my experience and I'll be putting it in between. So ये end होगा, end of vlog. Bye. See you guys next time. Bye berries. Love you very much.